آله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. Nabi Pak sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa barak wa sallam, they once mentioned an individual from the Bani Israel, that this individual for 1,000 months he worshipped Allah subhanahu wa ta'ala. This individual for 1,000 months, during the nights, he would stand before Allah doing Qiyamul Layl. During the day, he would be out performing jihad in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Times he would fast. In a nutshell, for 1,000 months, day in, day out, he had been performing good deeds, ongoing good deeds, standing before Allah the whole night, and waging jihad, struggle, strive for others and for himself. This is all classed as jihad. You can imagine for ongoing 1,000 months without any break, the amount of good deeds that person has piled up in his book of record. The Sahaba Kiram radiyallahu ta'ala anhum ajma'een, they said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa barak wa sallam, what a great individual he is, kitna khushkismat insaan hai, 1000 mahine रातों को अल्लाह की इबादत करता रहा है, दिन में जिहाद करता रहा है. How will we manage to reach that maqam which Allah has blessed him with, that for ongoing 1000 mahine, that's almost 83 years, in fact more than 83 years, itna lamba arsa उसने अल्लाह की इबादत की है, जिहाद किया है. हमारी उम्रें कम है, हम उसके मकाम को या वो अजर जो अल्लाह ने उसको दिया है हम कैसे हासिल करते हैं? How can we gain that reward and that मकाम? इधर सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह हम पीछे रह गए, उधर जिब्रील वही लेके आ गया. फरमाया रब ने फरमाया महबूब नहीं. Yes, that individual, day in, day out, he was worshipping me. He was out performing jihad. He was striving, struggling the way of Allah subhanahu wa ta'ala. लेकिन आप क्या एक उम्मती, फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर. वो 1000 महीने लगातार रब की इबादत करता रहा. For ongoing 83 years, continuous 83 years. He whole year, पूरे साल बाद रात ऐसी आएगी जो इसकी बात यहाँ भी बना जाएगी, वहां भी बना जाएगी. He worshipped Allah for ongoing 83 years. लेकिन आपका उम्मती जो इस रात में रब के सामने सजदा करेगा, इधर एक सजदा इसने करना है, रब हाय 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 फरमाया एक सजदे के बदले अल्लाह उसके नामा माल में 1000 महीनों की इबादत का सवाब लिख देगा. For him it was ongoing 83 years. But for us this is the karam of Allah. और दूसरे की रिवायत में ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he observed the lives of the people before us long, and he also observed their deeds. Obviously they had long lives and they had more deeds. जिसकी उम्रें लंबी हैं उसके अमल भी ज्यादा है. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he saw the people before us, the nation before us, their lives are long,
their lifespan was gone. But their deeds were huge as well. They could do a good amount of deeds. And my ummah, their ages are short, lifespan is short, and they will not be able to manage to build up that good, the account in their good deeds. तो आपको अपनी उम्मत का ख्याल आ गया। तो आप फरमाया महबूब फिक्र ना कर गम, हम ऐसा करेंगे करम, उम्र इनकी अगरचे है कम लेकिन सवाब नहीं करेंगे कम। उम्र अगरचे इनकी होगी कम लेकिन सवाब नहीं करेंगे हम कम। ਤੁਹਾਡੇ के ख्यालात तो थोड़े जो होए ने नाम। अच्छा, this is the Laylatul Qadr which is approaching us, and this is the beauty and the blessing and the karam and the grace of Allah subhanahu wa ta'ala upon us, that we do Allahu Akbar. Our deeds are quite small. कितने छोटे हैं। अब देखें, for example, a person who spends in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, he literally spends in the way of Allah. उसके पास कैश है, वो अल्लाह के नाम में सदका करता है, खैरात करता है, उसका बड़ा मकाम है। लेकिन फरमाया, if you can't afford that, if you're not in that strong position to literally spend in the way of Allah, फरमाया किसी की तरफ मुस्कुरा लो, सदके का सवाब मिल जाए। If you are not in that position to spend, teaching someone, telling someone to do good, this is class sadqa. फरमाया ये भी नहीं कर सकते हो, कोई साथी रास्ते में मिल गया है, उसे सलाम कर लो, ये भी सदका है। सलाम किया है, उसको जरा मुस्कुरा के देखा, ये भी सदका है। अल्लाह अकबर। इसका हदीस आ रही है हजरत इमाम बैक इन शुबल ईमान, our deeds are in quantity, they're not so much, but when it comes to quality, जब नंबर की तरफ देखा जाए नेकियों का तो नेकी है, लेकिन अजर देखा जाए तो सुभान अल्लाह। This Sahabiya, she as a representative of the Sahabiya, she came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, Ya Rasulullah alayhi salam, you are the prophet towards everything. You are the prophet towards males and females. आप सबकी तरफ अल्लाह के नबी बना के भेजे गए हैं, उसमें मर्द भी शामिल हैं, हम ख़वातीन भी शामिल हैं। Yes, we believe in you, हम आप पर ईमान रखती हैं, लेकिन या रसूलल्लाह अर्ज़ है, men, ये जो मर्द हैं, they can go out, perform jihad in the way of Allah, they can come to the masjid for Salatul Jumu'ah, they can come to the masjid for वैसे जमात के लिए, attending the funeral prayers, Hajj after Hajj, Umrah after Umrah. But we are constrained, we are limited, we are bound by certain rules. At times we cannot even pray the Quran, at times we cannot even pray Salah. या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, हम तो पीछे रह गए। हम ख़वातीन waging jihad, we have to look after their children. तो पीछे माल होता है, उसकी हिफाजत हमें करनी पड़ती है। मर्द जिहाद का भी सवाब ले गए, हज का भी सवाब ले गए, इतने अमाल का भी सवाब ले गए। ऐसी कार we are at home. अब देखो मेरे नबी ने क्या फरमाया। The Prophet sallallahu alaihi wasallam, after hearing her, जब आपने सुना कि मेरी ये सहाबिया, this is that passion and that connection and that love she has for her deen, she wants to have that same sort of reward that Allah grants the men for doing so much. हुजूर ने सहाबा से पूछा, ओ सहाबा, have you ever seen a lady do a speech as hers before? और सहाबा, क्या तुमने देखा कि किसी खातून ने इस तरह का बयान पहले किया हो? इतनी दीन की लगन, दीन से मोहब्बत, दीन से प्यार। सहाबा से या रसूलल्लाह, we are surprised, you know heard anyone before? इतना दीन की फिक्र, इतनी अपनी आखिरत की फिक्र, इतना अजर कर दिया, so much into their deen, there was so much reward. Sahaba said, Ya Rasulullah, you've not heard anyone before like this. Nabi Pak ﷺ, she addressed that lady, फरमाया, ओ सहाबिया, take this on board and teach this to others as well. ये जो मैं तुझे बता रहा हूँ, इसको याद कर ले, and convey my message to other sahabiyat as well, whom you left behind. You will come as a representative, तुम उनकी नुमाइंदा बन के आई है, पीछे जो अपनी साथी छोड़ के आई है, उनको जाके बता दे। तुसी एक गल सुनियो जरा,
तो मैं जाके बता दिया उनको, या रसूलल्लाह क्या बताऊं? फरमाया ठीक है, you stay behind taking care of the children of your husband, taking care of his health, wealth, taking care of his belongings, लेकिन मैं मोहम्मद तुम्हें वो अजर दे रहा हूं। फरमाया if you are cooperative with your husband and if you seek his pleasure, you will be equal in all the rewards that Allah grants him. फरमाया ठीक है, तुम घर में रहती हो, सारे मामला करती हो, अपने मियाँ के साथ अच्छे हो, मियाँ तुम्हारे साथ अच्छा है, आपस में अच्छी मामलात हैं, तो जो अजर तेरे खामन को अल्लाह मैदान जिहाद में देगा, अल्लाह तुझे घर बैठे वो अता कर देगा। This is deen. This is the karam of Allah subhanahu wa ta'ala upon us. Allahu Akbar. ये तो सहाबिया थी, the female companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. हज़रत अबू दरदा, मुस्नद इमाम अहमद, ये उसे हदीस से पाक है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, he says, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the rich are surpassing us when it comes to reward. या रसूलल्लाह, जो अमीर हैं वो हमसे नंबर ले गए हैं, जो अमीर हैं वो हमसे नंबर ले गए। They can spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, in the open, in secret, खुफिया एलानिया, दिन हो रात हो, वो अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हैं। हम गुरबा हैं, हम फकीर हैं, हमारे पास इतना माल नहीं है, we do not have so many means to spend in the way of Allah. So the rich, Allah Akbar, ये तो हदीस बाद में आपको सुनाऊं। You know that Sahabiya who came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam after hearing the Prophet sallallahu alaihi wasallam say to her that if you are cooperative with your husband, सारे मामलात अच्छे हैं, Allah तुम्हें वही सवाब देगा। You know, she went back and out of rejoice वो तकबीर के नारे बुलंद कर रही थी और ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे बुलंद कर रही थी। इतनी खुश हुई, वो सहाबी हो के नारे मार रही हैं, तो तुसी सुभान अल्लाह, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ रोजा रखा है। सुभान अल्लाह, चलो थोड़े ही रह गए, अल्लाह अकबर, चलो मैनू भी लग गया थोड़ा थोड़ा। So Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala, he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the rich, they are going ahead. When it comes to reward, they can do whatever they want. When it comes to spending the way of Allah, वो खर्च कर सकते हैं, उनके पास माल है। हम गरीब हैं, हमारे पास माल नहीं है, हम वो अजर कैसे पाएं, हम वो सवाब कैसे हासिल करें? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, yes you are right, but let me tell you a deed that if you act upon it, Allah will grant you more reward than them. मैं तुम्हें ऐसा अमल बताता हूँ, अगर तुम उस पे अमल कर लो तो अल्लाह तुम्हें उनसे ज्यादा सवाब अता करेगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह करो, फरमाए इससे बढ़ के क्या हो सकता है? फरमाया हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह कह लिया करो और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो, 34 बार अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर लिया करो, अल्लाह तुम्हें उनसे ज्यादा अजर अता फरमाएगा। So Huzzur said, after every namaz, say the 3 times, Allahu Akbar 34 times. Yes, you are. मामला और है, गरीबों का मामला और है, उनको खर्च करना पड़ता है, हम सिर्फ ज़बान से तुसी हले भी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे। ये अल्लाह का करम है हम पे, ये अल्लाह का अजर है हम पे, हमारे लिए अजर है। अब देखिए ना कुरान क्या कहता है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, द मिनिमम फॉर अ पर्सन हु डज अ गुड डीड, फरमाया उसके लिए कम से कम 10 है। और दूसरी का फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलातिन मिअतु हब्बा, फरमाया 10 से बढ़ाएंगे 700 गुना तक ले जाएंगे, मल्टीप्लाई 700 टाइम। लेकिन आगे फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, फरमाया 700 तो तुम्हारी अकल के लिए है, जिसका हम अजर चाहें इससे भी ज्यादा अता कर सकते हैं। और कितना ज्यादा है, हाय 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 हाय। If a person has done one good deed, the reward is what? Equivalent to 10 good deeds. 10 गुनाह माफ हैं, 10 जन्नत के दर्जात बुलंद हैं। रमजान है, सुभान अल्लाह, आपका लगता है नहीं ध्यान है, सुभान अल्लाह। रमजान है, फरमाया नफल का अजर फर्ज के बराबर, सुभान अल्लाह। The reward of a नफल equal to फर्ज, और फर्ज फरमाया कितना? times 70, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 70 गुना बढ़ा दिया है। और बल्कि दूसरी हदीस में क्या आया है, फरमाया 1 सजदा
a person during the month of Ramadan, फरमाए 700 रह गया, एक सजदे पे अल्लाह उसके नामा माल में 1500 नेकी लिखेगा, 1500 गुनाह माफ होंगे, 1500 जन्नत के अंदर दर्जात बुलंद होंगे। ये रमजान है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। Now coming on to the Laylatul Qadr, मेरे पास बड़ी हदीस के अंदर आ रही है। बुखारी शरीफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, he mentions, he narrates the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Brothers, we only have a few days left of the month of Ramadan, and let's make the most out of it. Yes, it's Friday night today, and tomorrow is Saturday night. काम बड़ा बिजी होना है, अल्लाह की कसम है, थे भी बड़ा बिजी होना है। फरिश्तियां दी लैना लगियां होणियां ने, और फरिश्तियां दी लैना लगियां होसन ते जड़ा जड़ा इथे बैठा होसी, तनज़्ज़लुल मलाइका, तनज़्ज़लुल मलाइका, खाली जोली होसी, रहमत दे नाल भर जासी। सुभान अल्लाहु अकबर। So Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala, Bukhari Sharif, he narrates Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he says, Man sama Ramadan. Yes, you are all in the state of fast. Imanan wa ihtisaban. According to Rasulullah mentioned, one who fasts in the month of Ramadan in the state of iman wa ihtisaban, and with the intention of earning reward from Allah. فَمَا غُفِرَ لَهُ गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, फरमाए जो गुनाह गुजर गए अल्लाह सब माफ कर देगा। फरमाए वन कामा लैलतुल क़द्री ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, और जिसने लैलतुल क़द्र को अल्लाह की बारगाह में क़याम किया, अल्लाह उसके भी तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। One who stands before Allah does ibadah of the Laylatul Qadr. And yes, the hadith mentioned, find it in the odd nights, in the last 10 odd nights. लेकिन hadith के अंदर ये भी है, वो 27वीं बन रही है. The hadith do indicate towards the being the 27th, which is tomorrow night. इसलिए कल रात असा सारे मस्जिद डेरे लासा ते सारे आसा ते खाली ना जासा जी तबरक देसा ते लैसा ते खासा ते बीसा। ये हदीस है, बल्कि अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, the beloved wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़, अहले इस्लाम की मादराने शफीक, बानवाने जो है, हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, अगर मुझे इल्म हो जाए कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र वाली रात है, तो अल्लाह से मैं कौन सी दुआ मांगूं? मेरे नबी फरमाया, दुआ मांगा कर, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ओ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद फरमाता है, मोमिनों की मां की भी बख्शिश फरमा दे। And Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala, she narrates this hadith about it. She says herself, कि तूबा, glad tidings to the one, लिमन वजदा फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा, glad tidings to the one who finds इस्तिग़फ़ार in abundance in his book। फरमाया उस शख्स को खुशखबरी है, मुबारक हो कि क़यामत का दिन जब आएगा तो अपने नामाए माल में इस्तिग़फ़ार को कसरत के साथ पाएगा। खुशखबरी क्या है? वो इस्तिग़फ़ार करता रहा, रब उसके गुनाहों को उसकी माफी देता रहा, जन्नत में दराज उसके बुलंद करता रहा। और यहाँ मुझे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये मैंने हदीस पाक पढ़ी तो मुझे इतना वजद आया, और the connection and the love. Yes, people talk about Romeo and Juliet, and हीर रांझे ने किसे साथ दे हो? ओए कल्ला चूहिया ने प्यार पढ़ना दे ते मैं नबी दे आयशा दा प्यार पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ए सस्सी ते फलाना छड़ दियो सारियां गल्लां। जब हमारे पास हमारा नबी मौजूद है, हमें और तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अरे वो हुस्न यूसुफ को क्या देखे जिसके पास आमिना का लाल मौजूद हो। अच्छा किस और पासे टोर पे
तो अल्लाह ने सानू किसी और पासे लाया सी that they had once she saw face of the Prophet ﷺ हुजूर बड़े खुश थे और हज़रत आयशा she says to the Prophet ﷺ या रसूल अल्लाह make dua for me हज़रत आयशा ने देखा कि हुजूर बड़े खुश हैं तो अर्ज की या रसूल अल्लाह आज बड़े खुश हो ते आज रहमत ना दरिया भी बड़ी जोश पर होसी रहमतुल लिल आलमीन बड़े खुश हैं अर्ज किया रसूल आज दुआ मांगो मेरे वास्ते ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ she made ए तोड़े वास्ते में सुने हो आगे हदीस के कह रही है the दुआ आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम made he says Allahumma फिर li आयशा आयशा ने क्या मांगा या रसूल अल्लाह दुआ करें मेरे नबी ने क्या कहा अल्लाहुम्मा फिर li आयशा इसका मैं तर्जुमा अगर यूं करूं उनकी शान के लायक या अल्लाह आयशा के दर्जात में और इजाफा फरमा नबी भी पाक है नबी की बीवियां भी पाक हैं and Hazrat Aisha is the one Allah revealed so many verses regarding her innocence वो खुद कहती हैं हाय 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 वो खुद कहती हैं जनाब मरियम की अस्मत की गवाही ईसा ने दी थी और मेरी अस्मत की गवाही अल्लाह ने कुरान में नाजिल की है सुभान अल्लाह नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली बात खत्म कर रहा हूं and when she hears that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has made this dua शुक्रिया जज़ाकल्लाह the Allahumma fil Aisha ओ अल्लाह फकीर आयशा के दर्जात बुलंद फरमा इतना हंसी सुभान अल्लाह और कल